Good morning, students. Today we are starting income method. Yesterday we have told you the method, steps, precautions to find out national income by income method. And today I am giving you an illustration to practice the other numericals by income method. So students, one illustration is given here. Calculate GNP MP. GNP MP हमको calculate करनी है. And these components are given. Rent 900, dividend 600, mixed income 200, NIT 900, depreciation 400, saving of private corporate sector 400, interest 200, compensation of employees 100, NFIA minus 20. So these components are given. Now how to solve by income method? First of all, we have to note it कि हमको क्वेश्चन में कुछ भी गिवन हो, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम NDPFC. हमको इनकम मेथड का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसकी स्टार्टिंग NDPFC से ही करनी है. NDPFC यानी डोमेस्टिक इनकम. डोमेस्टिक इनकम के कंपोनेंट आपको बताए जा चुके हैं. कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम. सबसे पहले हमने वो कंपोनेंट इसमें से सर्च करने हैं और NDPFC फाइंड आउट करनी है. So what are these components? Rent, dividend, saving of private corporate sector, compensation of employees, mixed income. ये सभी हमने डोमेस्टिक इनकम के कंपोनेंट्स देखे थे. अब इनकी वैल्यू हमने पुट कर दी, उसका टोटल आ गया 2400 करोड़. अब NDPFC जब हमने फाइंड आउट कर ली, देन वील फाइंड आउट NNPFC, दैट इज नेशनल इनकम. NDPFC प्लस NFIA. NFIA हमारा -20 है एंड आंसर विल कम 2380, 2380. क्वेश्चन है हमारा GNP MP, लेकिन हम स्टेप वाइज करेंगे इसको. पहले हमने NNPFC कर लिया, अब इसको GNPFC करेंगे. सिर्फ एक एक चीज चेंज करेंगे. N को G में कन्वर्ट करेंगे, यानी नेट को ग्रॉस में करने के लिए हमको डेप प्लस करना है. NNPFC प्लस डेप. डेप है हमारा 400, तो 2780 आंसर आ गया. अब GNP MP जो हमारा क्वेश्चन में डिमांडेड है, तो GNP MP आ जाएगा FC प्लस NIT, और NIT है 900. द आंसर इज 3680. सो वन ऑफ द क्वेश्चन आई हैव एक्सप्लेन्ड. अदर क्वेश्चंस आर गिवन इन द बुक. यू कैन प्रैक्टिस फॉलोइंग दिस फॉर्मूला. वी हैव टू स्टार्ट ओनली बाय NDPFC एंड रेस्ट ऑफ द जो भी कन्वर्जन्स हैं वो बाद में करने हैं, स्टेप बाय स्टेप करने हैं. ओनली देन यू कैन डू द right numerical. Next method is expenditure method. Expenditure method, national income is measured in terms of total expenditure on purchase of final goods and services produced in the domestic economy during an accounting year. कि एक accounting year में final goods और services पर होने वाला final expenditure, final goods और services whether by consumers or by producers or by government, किसी के भी द्वारा कंट्री के अंदर एक्सपेंडिचर हो रहा है, खर्च हो रहा है. हर सेक्टर में खर्च किया जाता है. कंज्यूमर सेक्टर अपना करता है, फर्म सेक्टर अपना करता है, गवर्नमेंट सेक्टर अपने अपने ढंग से सब खर्च करते हैं. तो जब हम इन सब खर्चों को, इन सब एक्सपेंडिचर्स को सम अप कर देते हैं, देन वी कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड. So there are some steps you have to learn how to calculate. First, identification of economic units incurring final expenditure, that is household consumption sector, firm producing sector and government sector. Then classification of final aggregate expenditure into following components. जितना भी expenditure है उसको हम अलग अलग parts में divide कर लेते हैं. Like private final consumption expenditure, government final consumption expenditure, gross fixed capital formation, change in stocks, net exports. These are the components of expenditure method. By summing up all the 5 components, we get GDP at MP. तो उनको सबको सम अप करके हमारे पास आ जाता है GDP MP. और अगर क्वेश्चन में कुछ और डिमांडेड है, NDPFC, NNPFC, then we will do conversions according to the formulas. And some of the precautions are also there.
Number 1, to avoid double counting, expenditure on all intermediate goods and services is excluded. हमें सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विसेज लेने हैं, इंटरमीडिएट गुड्स और सर्विसेज नहीं लेने जो अभी प्रोसेस में हैं, जिनका अभी पूरी तरह से प्रोडक्शन नहीं हुआ, अभी वो रॉ मटेरियल के रूप में हैं या रीसेल के लिए रखे हुए हैं. दीज इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट टू बी टेकन. And government expenditure on all transfer payments are also excluded, क्योंकि हमने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि ट्रांसफर पेमेंट्स आर नॉट टू बी एडेड, ओनली फैक्टर पेमेंट्स आर टू बी टेकन. ट्रांसफर पेमेंट्स कौन कौन सी थी? लाइक स्कॉलरशिप्स, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ओल्ड एज पेंशन, दीज आर नॉट टू बी एडेड बिकॉज दीज आर नॉट मेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. नेक्स्ट, expenditure on purchase of second hand goods is excluded from national income because this type of expenditure is not on currently produced goods. क्योंकि ये currently produced goods पर किए जाने वाला expenditure नहीं है, वो किसी और ईयर का प्रोडक्शन था, तो सेकेंड हैंड गुड्स के ऊपर किए जाने वाला खर्च नहीं लेंगे. नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ ओल्ड शेयर्स, बॉन्ड्स और न्यू शेयर बॉन्ड्स इज एक्सक्लूडेड because it is not payment for goods and services currently produced. So these are the precautions to be taken when we calculate national income by expenditure method. So now we'll discuss components of final expenditure on GDP. Components on final expenditure. Number 1, private final consumption expenditure. Private final consumption expenditure. Second, government final consumption expenditure. Third, gross fixed capital formation. Gross fixed capital formation. And fourth, net exports, change in stocks and net exports. Net exports. So these are the components to calculate national income by expenditure method. Now I'll explain these components in detail. First is private final consumption expenditure. It refers to expenditure incurred on purchase of goods and services purchased by households and non-profit institutions for current use for a time period. जो भी हाउसहोल्ड डेली लाइफ में यूज करते हैं, लाइक क्लॉथ्स, कार, शूज, कंप्यूटर, टीवी सेट्स, जो भी हम डेली लाइफ में यूज करते हैं अपने घर में, these all things, expenditure on these things is included in private final consumption expenditure. Second is, और सेकेंड हैंड गुड्स का हमने पहले प्रिकॉशन आपको बता दिया कि वो इसमें ऐड नहीं होगा. सेकेंड इज गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कि जो भी गवर्नमेंट पब्लिक के ऊपर खर्च करती है, लाइक डिफेंस, पुलिस, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, हेल्थ, जो भी पब्लिक के ऊपर गवर्नमेंट खर्च कर रही है कलेक्टिव नीड्स के लिए, गवर्नमेंट पीपल की कलेक्टिव नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर करती है, तो गवर्नमेंट का जो फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है ये भी कई पार्ट्स में डिवाइडेड है. जैसे नेट परचेज ऑफ करंटली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज इन द डोमेस्टिक मार्केट which is obtained by multiplying the volume of sale to the government by the enterprise with retail price. कि जो भी करंटली गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड किए गए हैं और गवर्नमेंट ने खरीदे हैं
पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए खरीदे हैं, अपने एम्प्लॉयज को देने के लिए खरीदे हैं, उनको रिटेल प्राइस से मल्टीप्लाई करके तो उनकी एक्सपेंडिचर इसमें आएगा। नेक्स्ट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज पेड बाय द गवर्नमेंट। अब जो भी गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज में लोग जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं, उनको मिलने वाली वेजेस एंड सैलरीज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ये इसमें ऐड होगा। देन डायरेक्ट परचेज फ्रॉम अब्रॉड बाय द गवर्नमेंट लेस वैल्यू ऑफ सेल। बाहर से जो भी गवर्नमेंट डायरेक्ट परचेज करती है, दूसरे कंट्रीज से भी कई बार गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स के लिए परचेजेस करती है, अपने सिटीजन्स को वो चीज़ें अवेलेबल कराने के लिए। तो ये जो थर्ड पॉइंट है, ये तीनों मिलाकर गवर्नमेंट का फाइनल एक्सपेंडिचर काउंट होता है। नेक्स्ट इज ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स इन्वेस्टमेंट। इट रेफर्स टू इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ड्यूरिंग अ ईयर विच इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन। इसमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू इंक्लूडेड होती है and it is divided into three parts. Business fixed investment. It is defined as addition to machinery, plants, building, equipment, जो भी fixed assets पर किए जाने वाला खर्चा है वो इसमें आता है. Next, residential construction investment. It refers to addition of housing facilities. Students, one thing you have to remember that among all consumer goods only house is an exception. हाउस जो है ये कैपिटल गुड है, कैपिटल गुड में काउंट किया गया है, ये कंज्यूमर गुड नहीं है। जबकि कंजप्शन में हम लेते हैं उसको, कंज्यूमर्स उसको यूज करते हैं, बट स्टिल इट इज कैलकुलेटेड इन कैपिटल गुड्स एंड द एक्सपेंडिचर डन ऑन हाउसिंग इज काउंटेड इन कैपिटल फॉर्मेशन। और ये कैपिटल फॉर्मेशन में इन्वेस्टमेंट में काउंट होता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर में काउंट नहीं होता। नेक्स्ट इज पब्लिक इन्वेस्टमेंट। इट रेफर्स टू कैपिटल फॉर्मेशन बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट भी कैपिटल फॉर्मेशन करती है, इन्वेस्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ स्कूल, हॉस्पिटल्स, रोड्स, कैनाल्स। तो गवर्नमेंट के द्वारा किए जाने वाला इन्वेस्टमेंट वो भी इसका एक पार्ट है। नेक्स्ट इज चेंज इन स्टॉक्स। इट रेफर्स टू फिजिकल चेंज इन स्टॉक और इन्वेंट्रीज लाइक रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स, finished goods lying with the producers for smooth working of production, and it is calculated by closing stock minus opening stock. Net exports, exports less imports. तो इसका सीधा फॉर्मूला है, एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट को माइनस कर देते हैं तो आ जाता है नेट एक्सपोर्ट्स. सो व्हेन वी सम अप ऑल दीज कंपोनेंट्स, these are the components of expenditure method, and we'll do numericals on tomorrow. That's all.